Good morning, students. We were covering the fourth lesson of history, and today we will try to cover one of the important figures in as far as the tribal community is concerned, and this is Birsa Munda. Okay, he was one of the Munda leaders, and he tried to gather his community members in, and he tried to raise his voice along with his community members against the British rule. Okay, now you see, if you look at your book, okay, there is a source given in your book: blood trickles from my soldiers. Okay, blood trickles from my soldiers. Okay, I will explain you this part, but let me explain about Birsa Munda. Okay, who is Birsa Munda? See, Birsa Munda, okay, he was born on 15th of November 1875. See, Birsa was born on 15th of November. This is not there in your book. अगर आपके पास पेंसिल है तो वहीं पे लिख सकते हैं. Okay, he was born on 15th of November. Okay, 1875 in Ulihatu. This is the place Ulihatu. ये जगह है रांची में जहां पे उनका ये जन्म हुआ था. Okay, so you see, okay, he was born 15th of November 1875 in Ulihatu, Ranchi. Okay, and ये जो है बहुत हद तक जो है ये आहत हुए थे जब ये बच्चे थे. ठीक है ना, तो इनके पूर्वज जो है यस पुनीत सिंह, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट योरसेल्फ. पुनीत अनम्यूट योरसेल्फ. आप खुद को अनम्यूट करिए, हाथ क्यों उठाए हैं? हाँ, have a look. See, Birsa was born on 15th of November 1875 in Ulihatu in Ranchi. Okay, and when he was a child, जब वो छोटे बच्चे थे तो क्या हो रहा था? जब वो छोटे बच्चे थे तो वो अक्सर अपने पूर्वजों को जो है बात करते हुए सुनते थे. ठीक है ना, और उनके पूर्वज जो है वो एक सतयुग की बात कर रहे थे. They were talking of a golden age. Okay, and what was this golden age? This golden age was the time. Okay, as a child, okay, Birsa often heard, okay, his ancestors, अपने पूर्वजों को जो है वो बात करते हुए सुनने थे. Okay, talking of a golden age. Now what is this golden age? This golden age is okay called सतयुग. ठीक है ना, एक ऐसे सतयुग की जो है वो 7th century. Okay, वो एक ऐसे सतयुग की जो है बात कर रहे थे जिस समय जो है okay, his ancestors were talking of a golden age. Okay, a time when the forests, okay, एक ऐसा समय जब जो जंगल जो थे वो उनके पूर्वजों की संपत्ति थे. When the forests were the ancestral property of his forefathers. Okay, अब क्या हो गया है? अब एक ऐसा युग आ गया है जिसमें आउटसाइडर्स आ गए हैं. Okay, the Dikus, they have come. Now the time has come when the Dikus have arrived on the scene, and these Dikus are what they are doing? These Dikus are okay throwing the tribals out of their habitat. Okay, they are throwing them out of their forest, which is the homeland of these tribals. Okay, so he is asking his fellow men. अब बिरसा जो है वो जंगलों में घूम रहे हैं. आपकी चैप्टर की शुरुआत ही आपने देखा होगा कि in 1895 a man named Birsa Munda is roaming the forest of Chota Nagpur. Okay, the first sentence of the chapter. Okay, it begins with this sentence that a person named Birsa is roaming in the forest of Chota Nagpur. And what he is doing?
he is gathering his fellow persons, he is gathering his fellow persons to raise their voice against the British rule. ओके अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपनी लड़ाई जो है लड़ने के लिए जो है अपने जो भाई बंधु हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं. और ऐसा माना जाता था, ठीक है ना, ऐसा माना जाता था कि बिरसा जो है क्या हुआ था, देखो एक समय ऐसा हुआ था, देखो एक इन द ईयर 1895, सी इन 1895 अ टेरिबल फेमिन, अकाल की स्थिति, ओके, अ टेरिबल फेमिन ब्रोक, ओके. In 1895, what do you see? A terrible famine, okay, it broke out. And what happened? Okay, ये जो त्रासदी हुई थी, okay, a terrible famine broke out and बिरसा, मैं उधर जा रहा हूँ. okay, he helped the famine-stricken log. It is not visible. I am writing it. Okay. Help the famine stricken people and served them. Okay. Now what do you see? Okay. 1895 में जो है नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है. नीचे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. बेटा ओके 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 ओके. फेमाइन ब्रोक के बाद क्या लिखी है मैम? फेमाइन ब्रोक के बाद क्या लिखी है? आउट आउट OUT आउट. ओके, अब फेमिन ब्रोक आउट, ठीक है ना. अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इस अकाल की स्थिति में क्या होता है, अकाल की स्थिति में जो है निस्वार्थ सेवा करते हैं. बिरसा मुंडा जो है वो निस्वार्थ जो फेमिन स्ट्राइकन लोग हैं, पीपल हैं. ओके, द फेमिन स्ट्राइकन पीपल. ओके, so what is Birsa doing? He helped the famine stricken people and it was believed कि अकाल की स्थिति में जो लोग जो प्रभावित हुए थे अकाल से, उनकी जो है निस्वार्थ जो है बिरसा सेवा करते हैं और वो उनके जो है क्या हो जाते हैं, वो उनके जो है हीरो बन जाते हैं. ओके, ही बिकम्स अ लेजेंड. और उनका प्रभाव इतना था, इनका प्रभाव इतना था. अब मान लीजिए अपनी स्वार्थ किसी की सेवा करते हैं और साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि कुछ कुछ जो लोग होते हैं उनके स्पर्श में जो है हीलिंग टच होता है. ओके, देयर आर पीपल हु व्हेन दे विल टच यू यू विल फील रिलीफ. ओके, ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, ओके, दिस पॉइंट्स दे हैव सम हीलिंग पावर्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू सर्व अ पर्सन, खास करके जो नर्स होती हैं, ठीक है ना, जो वैद्य लोग होते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही आप बहुत परेशान रहते हैं और उनके पास जाते हैं, वो बस आपकी नाभि को जो है टच करते हैं. ओके, और इसको टच करके आपकी दिक्कत को जो है वो महसूस कर लेते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव द हीलिंग पावर. Okay, they have some healing power with them and due to this healing power they provide relief to you from your pain. So it was believed कि बिरसा he had some miraculous powers. उनके पास जो है अद्भुत शक्तियां थी और इन शक्तियों की वजह से जो है वो बीमार व्यक्तियों को जो है स्वस्थ बना दे रहे थे और साथ ही साथ जो है वो क्या कर रहे थे, साथ ही साथ जो है वो अनाज को जो है दुगना कर दे रहे थे. ओके, नाउ कैन यू बिलीव दैट इट इज पॉसिबल? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि ओके दिस कैन बी डन? See, if you look at page number 39, देखो पेज नंबर 39 अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें दिया गया है सेकंड सेंटेंस ही, पीपल सेड ही हैड मिरेकुलस पावर्स, he could cure all diseases and multiply grain. Okay, Birsa was considered a legend. Because what? Because he served his people, okay,
is people with care and affection. Okay. Okay. So what we see is बिरसा he was considered a legend because he served his people with care and affection. और बिरसा जो है, ये जो फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, आपके बुक में जो है फॉरेस्ट एक्ट नहीं दिया गया है. When was the forest act passed? Okay. So have a look. See, the forest act was passed. जंगल का जो कानून था, ओके, ये 1882 में. It was passed in the year 1882. Okay. See, the Forest Act was passed in year 1882, and under this act, all wasteland, okay, all wastelands of village were notified as protected forest. As protected forest. Okay. Now try to understand this. Pay attention. Who is this? Have a look. Try to understand this. पागल हो रही है? अरे आएगा. ये सब क्या कर रही हैं लोग? हाँ? देखो आपस में गॉसिप शुरू कर दिए हैं लोग. Have a look. सी, जंगल का जो कानून है वो 1882 में पास होता है, और इस कानून के तहत जो गांव के जो वेस्टलैंड है, ठीक है, वेस्टलैंड वो क्षेत्र होते हैं जहां पे आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं. ओके, where you are not the wasteland are those areas which you are not utilizing for any activity. ना तो आप वहाँ पे जानवरों को चरा रहे हैं, ना वहाँ पे आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, ना तो आप वहाँ पे खेती कर रहे हैं. तो और गांव के जितने भी वेस्टलैंड थे, ठीक है ना, उनको जो है अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो नोटिफाई कर दे रहे हैं. अब बिरसा जो है वो इसके खिलाफ थे. ओके, बिरसा मुंडा ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस. बिरसा मुंडा, ओके, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस. वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इज इट पॉसिबल? आई विल राइट इट हियर. ओके, ही प्रोटेस्टेड, वो इसका विरोध कर रहे हैं. ओके, और वो क्या कह रहे हैं कि जंगल जो है वो उनकी संपत्ति है. अगेंस्ट दिस वो कह रहे हैं कि जंगल जो है आदिवासियों की संपत्ति है, वो उनका जो है घर है. ठीक है ना. ओके, द फॉरेस्ट आर द होमलैंड्स ऑफ द ट्राइबल्स. श्वेतांजलि, नींद नहीं पूरी हुई है क्या? हाँ, यू आर यॉर्निंग. हाँ, स्टिल फीलिंग स्लीपी? अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर फीलिंग स्लीपी. Have a look. Birsa Munda protested against this, and he felt that the forest were the homeland of the what? Homeland of the tribals. Now have a look at page number 48. 48 पे आप ध्यान दीजिए. See, Kripakar, do the reading. Kripakar, start reading. Puneet, can you hear me? पुनीत, आवाज नहीं आ रही है किसी की भी? Somebody start reading. कृपाकर, यशवंत, why you people are raising your hand? What is the problem? My voice is not coming. हाँ, देखिए ब्रिजेश सर हैं. यस बेटा, आवाज नहीं आ रही है सर. वॉइस इज नॉट कमिंग.
Children have raised their hand. क्या करके चले गए? मुझे किसी की आवाजें नहीं सुनाई दे रही है. यस, अर्पिता, अर्पिता गिरी. यस मैम. यस मैम बुक नहीं है. म्यूट कर दी है, म्यूट की थी. सॉरी मैं म्यूट की थी. ओके ओके फाइन. नहीं है. हैव अ लुक. जिनके पास बुक है ध्यान रीडिंग शुरू करो. कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 48. फास्ट. पेज नंबर. पेज नंबर 48. मैम कौन सी लाइन से? बिरसा मुंडा. Birsa Munda was born in the mid-1870s. Birsa Munda was born in the mid-1870s. The son of our father is the upper hand. Be quiet. चुप हो जाओ. मैं कर रही हूँ. चुपचाप ध्यान से सुनो. Okay? Have a I look. can read it. Listen to me. इसीलिए म्यूट किए थे. एक साथ सब बोलने लग रहे हैं लोग. Okay? Listen to me. Listen to me everyone. Birsa Munda. Birsa was born in the mid 1870s, the son of a poor father. He grew up around the forest of Bohonda. Okay? तो जिस जंगल में वो बड़े हुए उस जंगल का नाम जो है बोहोंदा था. Okay? The name of the forest was Bohonda. Okay? I will ask you. After reading, I will ask you questions. So pay attention. Grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, okay, Birsa heard tales of the Munda uprisings of the past and saw the Sirdars, okay, leaders of the community, urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendants, okay, of the original settlers of the region, fighting for their land, mulk ki ladai, reminding people of the need to win back their kingdom. Okay, Birsa went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it and said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. This would be possible if they became, okay, good Christians and gave up their bad practices. Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. Okay, Vaishnav means worshippers of Vishnu. He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and pity. Okay, तुलसी की माला उन्होंने धारण की थी. वैष्णव जो होते हैं वो तुलसी की माला धारण करते हैं. Okay. Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor yani sharab, clean their village, okay, and stop believing in witchcraft. Witchcraft matlab, okay, jadoo tona, okay, tantra mantra jo hota hai, and sorcery. Okay, but we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside forces that were ruining, okay, the Munda way of life. In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth. Okay, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. They did not kill their brethren. Brethren मतलब अपने भाई बंधुओं को नहीं मारते थे. Okay, and relatives. They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. Let me explain this much. Okay. Now tell me, जब बिरसा छोटे बच्चे थे तो वो क्या करते थे? जब वो छोटे बच्चे थे वो अपने पिता के जो है संतान थे, उनके पिता अमीर थे, उनके grazing sheep, मैम grazing sheep, playing the flute.
Grazing local akhada. Yes. Dancing in local and akhada. dancing in the local akhada. So what we see is, Yes, ma'am. okay, उनके हम पिता ने एडोलिसेंट का क्या मतलब होगा? एडोलेसेंट मतलब अभी आपकी आयु क्या है? ओके, जो बालिक नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो लोग जो है 18 Yes, ईयर्स ma'am. होते हैं, ओके, देखो देयर आर Yes, 3 ma'am. स्टेजेस, आपकी मैम नहीं पढ़ाई हैं, your science teacher has not taught you infant, ओके, जो छोटे बच्चे, मैम अभी वो चैप्टर आया नहीं है। ओके, देन यू हैव टॉडलर्स, देखो पहले इन्फेंट होते हैं, जो छोटे शिशु होते हैं, जो चलना फिरना नहीं जानते हैं, ओके, उनको इन्फेंट कहा जाता है। उसके बाद जब वो चलने लगते हैं उनको टॉडलर्स कहा जाता है। सॉरी मैम टीनेजर। नो अभी टीनेजर नहीं आएगा, ओके, देन यू हैव टॉडलर्स के बाद जो है आपके जो है किड्स आएंगे, ठीक है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, दे विल कम, ओके, किड्स दे विल कम, ओके, एंड देन यू हैव द टीनेजर्स, नहीं यहाँ पे एडोलेसेंट आएगा, सॉरी, दीज आर एडोलेसेंट्स, इनको समझ नहीं होती है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं ना, इनको समझ नहीं होती है कि ये क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ओके, उसके बाद जो है ये समय आता है टीनेजर्स, ओके, जैसे ही आप Yes, 13 ma'am. में जाते हैं, ये जो है एज 12 तक रहता है, दिस एज इज स्टिल 12 o'clock, सॉरी 12 years, सॉरी, ओके, ये लगभग 5 तक आप ले सकते हैं, लगभग 5 तक आप ले सकते हैं, और छोटे बच्चे जो है बिलो 1, 1 साल के पहले कोई बच्चा जो है चलना शुरू नहीं करता है, तो लगभग जो है हम लोग 1 year लेते हैं, देन यू हैव द टॉडलर्स, ओके, एंड देन यू हैव एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स जो है 5 से 12 के बीच में आते हैं, द मोमेंट यू आर 13, ओके, 13 में आप देखते हैं ना लास्ट में टीन आता है, तो हियर यू स्टार्ट द टीनेजर्स, यहाँ पे जो आपकी टीनेजर की आयु जो है वो शुरू हो जाती है और 17 तक रहेगी, एंड देन यू बिकम द एडल्ट, ओके, so these are the different stages, these are the different stages, your science teacher she will explain you। तो adolescent का मतलब ये होगा एक ऐसी आयु, ओके, बच्चे की एक ऐसी आयु, ओके, उस समय जो है बच्चे को जो माता पिता कहते हैं वो चुपचाप उस चीज को विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी समझ नहीं होती है, खुद की उनकी रीजनिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई रहती है। लेकिन अभी जो आप लोग टीनेजर्स हो, अगर आपके पेरेंट्स कह रहे होंगे जल्दी उठो, जल्दी उठ के क्लास के लिए तैयार हो जाओ, क्या मम्मी सुबह सुबह शुरू कर देती हो, सोने भी नहीं देती हो, ओके, सबसे पहला दुश्मन आप सबसे पहला दुश्मन अपने पेरेंट्स को समझेंगे, और वहीं पे अगर मैं हूँ, मैं कहूंगी अच्छा बेटा आज आप सो लो, कल उठ के पढ़ाई करना, मैम कितनी अच्छी हैं, हाँ, यस मैम, ठीक है ना, मैम हॉस्टल में दाइया उठाती है, ओके, तो ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओके, और इन हार्मोनल चेंजेस के वजह से जो है आप थोड़े गुस्सैल हो जाएंगे, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, थोड़े विद्रोही स्वभाव के हो जाएंगे, यू विल बिकम अ रेबेल, ओके, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट पोएम रेबेल। यस मैम, द रिटर्न ऑफ रेबेल। यस मैम, हाँ, तो मैं जब सारा काम उल्टा करता है, ओके सब कुछ उल्टा Yes, करते हैं, ma'am. तो वही चीज Yes. आप लोग करते हैं, देखो मेरा क्लास डिले करवा दिए, have a look, so what we see that when Birsa was a child, when Birsa was a child, okay, he used to graze sheep, okay, play flute, बांसुरी बजाते थे, ठीक है ना, प्ले फ्लूट एंड डांस इन द लोकल अखाड़ा, डांस इन लोकल अखाड़ा, ओके, ओके, when he grew up, okay, he came in touch with whom, जब वो बड़े हुए वो किसके संपर्क में आए, बुक, हाँ, he came in touch with the Christian missionaries, ठीक है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं उनके संपर्क में वो आते हैं, ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो क्या कहते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो उनको जो है मोटिवेट करते हैं, ओके, ही इज मोटिवेटेड टू व्हाट,
मोटिवेटेड टू गिव अप बैड हैबिट्स। ट्राइबल्स जो है वो मदिरा का सेवन करते हैं। तो जो है जब मिशनरीज के संपर्क में आते हैं तो उन्हें जो है ये पता चलता है कि उनको अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। ओके, क्लीन द विलेज, गांव को जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर गांव साफ सुथरा रहेगा तो अकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ओके, हाँ तुम लोग बस चिल्लाना शुरू कर दो, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। मैम नीचे वाला दिख नहीं रहा है। हो गया, ऊपर लिख दिए क्लीन द विलेज। ओके, सो व्हाट वी सी कि जब बड़े हो जाते हैं तो देखो मिशनरीज के संपर्क में वो आते हैं, और मिशनरीज के संपर्क में आते ही उन्हें पता चलता है कि जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए, गांव की सफाई करनी चाहिए। ओके, एंड व्हाट अवॉइड विचक्राफ्ट। ओके, काला जादू जो किया जाता है। ओके, अवॉइड विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। ओके, सॉर्सरी जादू टोना। अगर जो ट्राइबल्स हैं इन सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, इन सारी नेगेटिव चीजों को गिव अप कर देंगे तो उनका ध्यान जो है इस तरफ केंद्रित हो जाएगा कि वो वापस जो है उस सतयुग को जो है ले आएंगे जो उनके पूर्वज, ओके, जिस सतयुग में उनके पूर्वज रहते थे। ओके, और with passage of time he was influenced by the Vaishnav. He was influenced by the Vaishnavs. जो वैष्णव होते हैं वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, विष्णु के जो पुजारी होते हैं, विष्णु के जो भक्त होते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड he started wearing the sacred thread. He started wearing. अब बताओ तुलसी की माला जब धारण करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं, किसी को पता है? उसके कुछ नियम, उसके जो है कुछ नियम होते हैं। मैम नॉनवेज नहीं खाया जाता है। यस मैम नॉनवेज नहीं खाया जाता है। यस, आप जो है नॉनवेज नहीं खाएंगे। प्याज भी नहीं खाया जाता है। यस, प्याज भी नहीं खाया जाता। प्याज तामसिक चीजें, तामसिक। आपकी हिंदी शब्द में आप हिंदी टीचर अपने संस्कृत के टीचर से पूछिएगा, तामसिक जो वस्तुएं होती हैं जो आपकी आपके अंदर उत्तेजना लाए, आपके अंदर जो है बैड फीलिंग्स ले आए, ठीक है ना, उन सारी चीजों को हम अवॉइड करते हैं जब हम तुलसी को धारण करते हैं। तुलसी को जब हम धारण करते हैं तो हम लोग सात्विक भोजन करते हैं और हम लोग एकदम सिंपल लाइफ लीड करते हैं। हम लोग खाली अपने जीवन को जो है भक्ति में समर्पित कर देते हैं। ओके, लेकिन विथ ग्रोइंग ईयर्स, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और अपने ट्राइबल्स की जो दिक्कतों को जब वो समझते हैं तो वो उन्हें लगता है कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, ओके, he starts believing that these missionaries, अब जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो क्या कर रहे थे? बिलीविंग दैट मिशनरीज आर व्हाट? दे आर आउटसाइडर्स। Missionaries are outsiders and influencing their rich heritage, the rich culture of the tribals. अब उनकी जो संस्कृति थी, ठीक है ना, आदिवासियों की संस्कृति क्या है? आदिवासियों की संस्कृति ये है कि वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, ओके, एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, ठीक है, जंगलों की पूजा करते हैं, माउंटेन स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो हर वो प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं। अब ये मिशनरीज क्या कर रहे थे? मिशनरीज को जो है ब्रिटिशर्स ने जो है बढ़ावा दे रखा था। They had full support of the Britishers. The missionaries, what they were doing? They were convincing the tribals to convert into Christianity. अब बहुत सारे जो आदिवासी हैं ना, उनको जो है ये बरगला रहे थे, कह रहे थे कि आप ईसाई धर्म अपना लीजिए, ओके। और ईसाई धर्म में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ईसाई धर्म में वाइन को कंज्यूम करना जो है इट इज नॉट अ सिन, ठीक है ना। आप देखते हो ना उसमें अंगूर का रस पीते हैं लोग, ओके। तो अंगूर का रस क्या है? यस, अंगूर का रस क्या है? एक प्रकार का नशा करने वाला वस्तु है, ठीक है ना, एक प्रकार की नशा करने वाली पदार्थ है। तो
मिशनरीज वाइन है। यस, मिशनरीज दे वर सपोर्टिंग वाइन। और आप देखते हैं क्रिश्चियंस जो है वो नॉनवेज खाते हैं ना? हाँ, ओके मैम। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, बिरसा जो है वो अपने भाई बंधुओं को कह रहे हैं कि हमें इन मिशनरीज से दूर रहना होगा। एक समय में वो उनसे प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और उनकी समझ बढ़ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि मिशनरीज उनके दुश्मन हैं। वो उनके जो कम्युनिटी के सदस्य हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको जो है बरगला रहे हैं कि वो अपने धर्म को परिवर्तन कर ले। ठीक है ना? ट्राइबल्स दे डोंट फॉलो एनी रिलीजन। ओके, एज फार एज हमारे जो है बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन आदिवासियों का जो है आप देखेंगे उनका कोई धर्म नहीं है। दे डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। Okay, you can take up history and you can find out the tribals, they do not follow any religion. What they follow is they follow the rules of nature. जो प्रकृति के नियम है बस उन्हीं को वो लोग फॉलो करते हैं, और प्रकृति ही उनके लिए सब कुछ है। आप अपने सिविक्स के चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगी, एनुअल के पोर्शंस में आप मार्जिनलाइजेशन चैप्टर पढ़ोगे, और उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो मीडिएटर्स होते थे वो इन ट्राइबल्स को जो है फुसला के ले जाते थे। ओके, चाय के बागानों में काम करने के लिए, कोयले के खदानों में काम करने के लिए, लेकिन इनकी वापसी नहीं होती थी। ये ट्राइबल्स चले तो जाते थे, लेकिन वो लोग जो है वापस नहीं आ पाते थे। In this chapter marginalization you'll come across a poem जिसमें जो है जो मीडिएटर है जादूराम, उसका जिक्र हुआ है। ठीक है ना? जादूराम कैसे ट्राइबल्स को फंसा दिया है और उनको उनके घर जो है वापस आने नहीं दे रहा है। ओके, so these are the problems that were related with the tribals. Okay, and Birsa was trying to motivate his fellow people to क्या वो चाह रहे थे कि उनके भाई बंधु जो है शराब पीना छोड़ दें, गांव की साफ सफाई रखें, ताकि आगे चल के भविष्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है ना? और तंत्र मंत्र जो है इसमें विश्वास करना छोड़ दें। अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसका उपचार करें। ठीक है ना? उसका उपचार करें ताकि वह स्वस्थ हो जाए। नाउ व्हाट डू यू सी? ओके, गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, one more class would be required, I think. एक और क्लास चाहिए हमें। Now the time is very less, only 1 minute left. Any question? हम कल उसको कर दीजिएगा। हाँ, इसको कल कंप्लीट करना होगा। And day after tomorrow I want to take a leave. फ्री पढ़ा दी। Okay.